Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. Today we won't be discussing on any topics. Today we will be just discussing about, we'll just be discussing multiple choice question of chapter 1, that is what is democracy and why democracy. As we all know that we have completed the chapter on the previous video or previous classes. So today we'll just have a small MCQs, some questions I have collected from your chapter. It's not outside the chapter. So now I will be calling one by one, or those who are willing to come and tell the answer, then you are all most welcome. Okay. So now let's start without wasting time. Like time is money. So how many members are elected to the National People's Congress from all over China? How many members are elected? Okay, Amitansu, you can come on the board. Okay, 3,000 members were elected. Now remember this, 3,000 members were elected, but that doesn't prove that China is democratic. Why? Because these 3,000 members belong to the singular party that is known as the Chinese Communist Party or Communist Party of China. Okay, belong to the Communist Party. They had huge number of members. 3,000 member कम नहीं होते बेटा, ठीक है, 3,000 मेंबर्स कम नहीं है. हमारे में कितने हैं इंडियन पार्लियामेंट में? 552. बट देर आर वर्किंग मेंबर्स आर, sometimes it is working like 545 are like working, some seats are vacant. It happens. So in comparison to that they have more, but this belongs to one unitary party, that is Communist Party. Which party always won the elections in Mexico since its independence in 1930 until 2000? Mexico, yes, Bhanu Pratap. Very good. Institutional Revolutionary Party, also known as PRI. PRI won using dirty tricks, yes. It's not that कि कोई भी पार्टी लगातार रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं. यस, उसमें लोगों का अप्रूवल है तो रह सकते. लाइक इफ पीपल आर इलेक्टिंग देम रेगुलरली देन इट्स पीपल्स चॉइस. बट इवन दो टू रूल अराउंड हाउ मेनी ईयर्स, 1930 to 2070 years without any discontinuation, बिना किसी रुकावट के, तो उसमें लग रहा है कि भाई बेटा दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है. सो पीआरआई ने क्या किया कि लाइक टीचर्स को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मतलब मीडिया वाले सारे चीज को क्या किया, कंट्रोल में किया है, बस इलेक्शन जीतने के लिए. ठीक है. एनी फ्यूचर लीडर्स आउट हियर, देन बी केयरफुल, डोंट डू दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स. ओके. व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम whom? Okay, Tanya. Come on. Okay, 1980 from white minority rule. Okay, very good. So, whose party was in Zimbabwe? ZANU PF. ZANU PF. Okay, ZANU. Z-A. Okay, write in ZANU-PF. PF, yes? So ZANU PF. Robert Mugabe. Yes? Mugabe. I have some Mugabe friends from Zimbabwe. Which of these features are necessary to provide the basic rights to the citizens? Okay, Akansha. Which of these features are or is necessary to provide the basic rights to the citizens? क्या citizens should be free to think, ये होना चाहिए. should be free to form associations, ये होना चाहिए. should be free to raise protest, ये होना चाहिए, या सारा होना चाहिए? Okay, very good. All of the above. Citizens
which of these features are necessary to provide the basic rights? So these are the basic features or rights that should be provided to the citizens. Yes, इसके बाद तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ में ये 3 बेसिक्स है. You should have associations, union वगैरह फॉर्म करने का मिलता है, ड्राइवर्स एसोसिएशंस, लेबर्स एसोसिएशंस. यस, होता है ना. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NGO, they are working for the welfare of the people. Free to think, yeah, think. We are free to think. Yes, even they torture us not to think. Thinking is free of cost. Yes, we can think anytime, anywhere. Right now also we can think, but should be free to raise protest. Yes, protest भी कर सकते हम लोग. Yes, but protesting is not a crime or it's illegal in India, but it should be done in a peaceful way. Yes, then it's not a problem. But if you are free to think, yes, everyone is free to think. But in monarch में हम लोग नहीं बोल सकते कि you are free to think. वहाँ पे monarch के लोग भी सोच सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना ही करना है, एक्शन में नहीं लाना है. जो तुम सोच रहे हो एक्शन में ला दिए तो फिर भाई समझ लेना कि क्या हो जाओगे, तुम्हारे साथ एग्जीक्यूट हो जाओगे. इफ यू व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? इज सुंदरम प्रेजेंट टुडे? व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कम संजना. इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है? लॉ टू मेक, देखो समझो, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन सा है? प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी सहूलियत वगैरह दिया गया है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे, या संविधान बनाने का जो लॉ है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे. लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव? ना, नो. एनीवन? You mark everything. Mark everything. That is also wrong. Okay, now let's get confused. Okay, you may go. I'll make your confusion. I'll remove away all your confusions. Okay, Sanjana, now listen. Law to set up constituent assembly is a different thing. It's not written in a constitution. लॉ टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लाइक हम लोग ने वो चैप्टर भी पढ़ लिए है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले. तो उसको हम लोग संविधान का लॉ बोलेंगे? नहीं. लॉ टू मेक संविधान, लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलेंगे? नहीं, क्योंकि संविधान तो बन चुका है, फिर और क्या, क्यों संविधान चाहिए? तो सिंपली प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कुछ लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इज दैट क्लियर? सो एंड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? ओके, गुड. आई गिव यू वन मोर चांस टू करेक्ट योर मिस्टेक. सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज लाइक कुमकुम. Instability and delays, corruption and hypocrisy, politicians fighting among themselves. Yes, so these are no problem. Some of the drawbacks. Okay, very good. That means corruption, hypocrisy, instability, delays, politician fighting with each other, ये सारा चीज क्या है? डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक्स है. हाँ, लेकिन इंस्टेबिलिटी बोल सकते हैं, लेकिन डिलेज समटाइम्स हम लोगों ने इसका काउंटर भी किए हैं. लाइक डिलेज कंसल्टेशन हो और डिले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे बेटर आउटपुट आएगा. ठीक है. सो आशुतोष, इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स famine that had occurred in the world? In which period did China face one of the worst famines that have occurred in the world? Come. D. Wrong. This is minus. You are talking. This is 2004 to 2007. No. You want to correct your mistake, then come.
You are wrong. Is it correct? No. Anyone? Okay, you are correct. Okay. 1958 to 61 में ये फेमाइन आया था इस दौर में, और तुम लोग जानते हो कि चाइना ने कैसे टैकल किया और हमारे इंडिया में कैसे टैकल हुआ है। यहाँ पे जो आउटकम आया है इस फेमाइन का दोनों देशों में अलग अलग देखने को मिला है। चाइना में ज्यादा हिट किया है क्योंकि वहां के गवर्नमेंट पॉलिसीज थोड़ा डेमोक्रेटिक नहीं था। अगर जनता के बारे में सोचते तो शायद वो लोग क्या कर पाते कि लोगों के बारे में सोचते, फूड सप्लाईज देते। वो लोग पीपल के प्रति रेस्पॉन्सिबल ही नहीं, अकाउंटेबल ही नहीं है, इसलिए ज्यादा वर्स्ट हुआ है चाइना में। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज आई वांट अंश। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज डिसीजंस आर टेकन बाय एजुकेटेड पीपल। तो भाई डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है? द फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मैं रीड कर दूंगा बिकॉज लुक एमसीक्यूज लुक इजी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, डेमोक्रेसी सुधार करता है, क्वालिटी पे सुधार करता है किसका? डिसीजन लेने वाला। क्यों? क्योंकि डिसीजंस पढ़े लिखे लोग लेते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। डिसीजन जो होते हैं कंसल्ट करके, डिस्कस करके लिया जाता है, बातचीत करके। या डिसीजन जो है टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या ऑल डिसीजंस आर अप्रूव्ड बाय जुडिशियरी। वेरी गुड। ओके, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज डिसीजन इज टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। यानी कि उसके ऊपर, थैंक यू, उसके ऊपर क्या है कि बहुत डिबेट होता है, कंसल्ट होता है, लोगों की अलग अलग ओपिनियंस जानने को मिलता है, उसके बाद फाइनली एक डिसीजन लिया जाएगा जो कि बेटर रहेगा। जो हम लोग का रैश डिसीजन होता है या जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन होता है उससे बेटर होगा, भले ही लेट होता है बेटा, देर आए दुरुस्त आए। समझ रहे हो ना? इज दैट क्लियर? शायद यू आर वेरी मच अवेयर इन हिंदी देन मी। वेरी सिंपल क्वेश्चन अमित। The most common form that democracy takes in our time is that of maximum democracy, limited democracy, representative democracy, none of the above. Very good, representative democracy. Why representative democracy is important? It is because I said physically सबको एक जगह पे एक साथ इकट्ठा करना संभव नहीं है, ठीक है? इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे देश में, और इतने बड़े पॉपुलेशन में मान लो फिजिकली एक सोचा जाए कि सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना जरूरी, सॉरी मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल। इट्स लाइक इम्पॉसिबल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है? लाइक इम्पॉसिबल बोलेंगे तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है पॉसिबल भी हो जाए। इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि सबसे पहली बात तो जगह ही नहीं मिलेगी। अगर बाय द वे पॉसिबिलिटी बन भी गया, सबको इकट्ठा कर भी लिए, तो सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स लाइक यू ऑल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इज दैट क्लियर? आई वोंट बी। मैं पढ़ाऊंगा या वहां पे पॉलिटिक्स का डिसीजन लेने जाऊंगा। सो उससे बेटर क्या होता है कि सारे मास जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक प्रतिनिधि बोला जाए हिंदी में, आई होप सो, या रिप्रेजेंटेटिव हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट नहीं इलेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, वही हमारा क्या बन जाएगा, आवाज बन जाएगा, ठीक है? अब आवाज तो अपने पास है, सब फिर सोच रहे कैसा आवाज, ही विल स्पीक फॉर अस। क्या हम लोग गूंगा है? नहीं, ही विल स्पीक फॉर अस बिकॉज हम लोग के पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, और इतने पॉपुलेशन को एक साथ आगे रखना भी इट्स इम्पॉसिबल। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी? ओके रिया, example of perfect democracy. You to be ready now. Huh? Why? Why? डेमोक्रेसी में सब चीज को देखकर
डिसीजन लेते हैं और ओके, आई नो यू आर राइट, करेक्ट है आंसर। डिबेटेबल टॉपिक है ना। ओके गो, आई एम टेलिंग यू नो, लेट मेक ओके, it can be good democracy, this can also be good democracy, this can okay, this can also be good democracy, our country also has a good democracy, but we cannot say it as the perfect democracy. No democracy in the world is perfect, it always have some drawbacks, because when we set certain kind of standard and that standard is almost impossible to fulfill for a democracy, लेकिन उस standard के ऊपर democracy काम करेगा तो yes, that democracy will become a good democracy, but it won't be perfect. जैसे कि स्टैंडर्ड क्या दिया है बुक में, a true democracy is when the children of our country goes to bed without, नहीं, nobody goes to bed on half stomach or whatever, खाली पेट नहीं जाएंगे ना, half stomach or like hungry, yes. so ये जो एक स्टैंडर्ड जो है, it is almost इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बट इट इज वेरी हार्ड टू अचीव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया. स्टारवेशन kills lots of people every year in our country. Even someone is dying right now at some places because of starvation. Yes, that is the ratio. So अब उस स्टैंडर्ड को देखेंगे तो yes, we cannot say our country is a perfect democracy or true democracy. True means you can say perfect democracy. Is that clear? But yes, if we work on that standard, then our country can certainly become a good democracy. डेमोक्रेसी से ऊपर आना है बेटा, डेमोक्रेसी सबके पास है, लेकिन कैसे गुड बनाना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी पीपल ऑफ द कंट्री. तो तुम लोग कैसे देखते हो? वी हैव जस्ट रीच्ड क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 विल बी गिवन टू आर्यन. How does the definition of democracy help us? Definition of democracy कैसे help करता है? ओके, वेरी गुड. डेफिनेशन केवल हम लोगों को ये डेफिनेशन हम लोगों को केवल ये बोलता है डेमोक्रेसी का कि हम लोग डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है वो ये बताता है कि हम लोगों को कि दूसरे कंट्री जो क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं है उससे अलग करवाने में मदद करता है. लेकिन एक कंट्री सही में ट्रू डेमोक्रेसी है या नहीं है, या दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, हम लोगों को और अंदर क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है. इज दैट क्लियर? डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज Parvez, come. Huh? Okay, good. It allows change allows करता है. Okay. Allows voting. Democracy better इसलिए allows voting. Allows right to opinion. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात है बेटा, डेमोक्रेसी में हम लोग अपना गलती को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते. वोटिंग तो उसमें भी होता है ना बेटा, चाइना में भी होता है ना वोटिंग तो, लेकिन उसको हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे ना. तो वोटिंग केवल डेमोक्रेसी का बेटर फॉर्म नहीं बोलेंगे, ओपिनियन भी देखने को मिलता है. लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि हम लोग अगर गलती से कुछ भी आज के दिन में गवर्नमेंट वगैरह चूज कर लिए, जो एक मिस्टेक हो गया हमसे, तो कल के दिन में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं. अलाउज चेंज तो एवरी जगह पे होता है. चाइना में भी चेंज आता है, लीडर चेंज होता है, लेकिन इट इज नॉट फॉर द बेटर. डेमोक्रेसी में भी होता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये चेंज हम लोग के हाथों पे डिपेंड है ना. ओके, एक बार चेंज लाए, गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो गलती को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं. दैट विल नॉट बी अ मिस्टेक. इफ कहावत है, इफ अ पर्सन कमिट्स अ मिस्टेक फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स नॉट ए मिस्टेक, बट इफ यू रिपीट द मिस्टेक सेम टाइम अगेन एंड अगेन दैट विल बी अ मिस्टेक. यानी कि उस मिस्टेक पे हम सुधार नहीं करेंगे तब हम लोग उसको क्या मानेंगे, गलती
मानेंगे। यस, तो सिंपल सी बात है, हम लोग का मिस्टेक्स को सुधारने का मौका मिलता है किसमें? डेमोक्रेसी में। ऑटोक्रेटिक में नहीं मिलता है। वहां पे भी चेंजेस तो लाता है ना, सबको ही चेंजेस लाता, चेंजेस रिफॉर्म लाएगा भाई। जानू पीएफ वगैरह ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था, चेंज तो आ रहा है, लेकिन किस आधार पे वो चेंज आ रहा है वो मायने रखता है बेटा। चेंज तो आएगा डेमोक्रेसी में, लेकिन व्हाट, किस आधार पे चेंज आ रहा है और उस चेंज से क्या बेनिफिट हो रहा है वो मायने रखता है बेटा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Our democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. True, false, maybe, या नहीं? गुड, यानी कि a government should run under the constitutional law. तो हम लोग ने एक पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से एक ट्रस्ट क्या करता है, लोगों के बीच में बढ़ देता है। तो गवर्नमेंट जो होता है, लिमिट्स सेट किए जाते हैं उनको किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा। और बेटा कोई भी गवर्नमेंट आए जो तुम्हारे ये सिटीजन राइट्स है इसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, चाहे उस गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी लगाने के लिए ये सारे चीजें क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, तब भी वो नहीं चेंज करेगा। अगर चेंज करेगा तो समझ लेना फिर they are taking some undemocratic steps. So true. What kind of operation did Mugabe give his people? मुगाबे ने किस प्रकार के ऑपरेशन दिया? ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन। Opposition party workers were harassed and their meetings disrupted. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. Yeah, all. What is it? Atul? Good. He did everything. Opposition party, by opposition is a very important part of a democracy. तो भाई ऑपोजिशन को तो काम करने ही नहीं दिया, उनके ऊपर हैरेसमेंट किया, वो लोग का मीटिंग को रोक दिए, एंड पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये तो डेमोक्रेसी का पार्ट है बेटा, कि कल के दिन में गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करे तो वी पीपल कैन शो अवर पब्लिक प्रोटेस्ट और पब्लिक ओपिनियन। ये सारी चीज को क्या कर दिया, इलीगल बता दिया। और सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर से जिम्मेदारियां हटा दी। पावर ली है खूब कि हम संविधान को बदल सकते, ये कर सकते, लेकिन अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो कम कर दिया। तो केवल है कि और ऊपर से ये भी लिमिट कर दिया कि कोई भी उनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर। सो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गए। एक प्रकार से एक लेकिन प्रेसिडेंट मुगाबे सेंट्रिक हो गया, सारा चीज किसके इर्द गिर्द घूमने लगे, मुगाबे में। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स में नहीं घूमे, लेकिन सारा प्रिंसिपल्स अब किसके अधीन घूम रहे हैं, मुगाबे। सो नेक्स्ट इज आकांक्षा, यू कैन कम ऑन द बोर्ड, आई विल नॉट शो यू द क्वेश्चन। इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have no, or not Anushka, I mean I gave you chance, no? Yes, sir. Okay, now your turn. Okay, very good. Both A and B. Everyone must have one vote, and that one vote must have one value. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to the Russian minority find it difficult to get economic right, वो लोग को नहीं मिल रहा था, the right to vote नहीं मिल रहा था, right to women's vote नहीं मिल रहा था, या all? Very good, right to vote. That means even being the citizen of Estonia, but their बोला जाए तो एंसेस्टर्स बिलोंग करते थे रशियन। अब रशिया है तो रशिया वाले को क्या नहीं दे रहा था, वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे थे। सो दैट मीन्स उन
उस आधार पे इस्टोनिया को हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक में होना चाहिए मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू एंड एवरीवन शुड बी गिवन द राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट. Alka, what is the Chinese parliament called? Read the question properly. What is the Chinese parliament called? No, you take the answer. B. Anyone? Shreya, come. It's wrong. Go. फालतू में बुलाया, तुम छोटी पढ़ रहे हो ऊपर से नहीं. Chinese Communist Party was the name of the political party and National People's Congress कुछ कुछ लिखा है, something that name. It's like tough for me to pronounce. So चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो वहां का पॉलिटिकल पार्टी था, लेकिन पार्लियामेंट का नाम क्या था? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ओके निशु, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ, इज दैट क्लियर? वेरी गुड. दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द लीडर्स. लीडर्स ही है, लेकिन वो लीडर्स क्या होना चाहिए? इलेक्टेड बाय द पीपल. पाकिस्तान वाला केस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? पाकिस्तान एंड ओके पाकिस्तान. इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री coup इन coup बगावत. एनीवन? अतुल? Is it correct? Oh. Satyam. Okay, 1999. So 1999 में उन्होंने मिलिट्री coup किया, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिए और पावर अपने हाथों पे ले लिए. सो हु इज बिहाइंड सत्यम, दैट बॉयज नेम? आयुष. यस. व्हेन वाज मुगाबे फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस? ओके 2017. सो आई होप you all are this much I had completed 20 questions from this chapter. The mostly this chapter is related with some concept, with some factual details like the major incidents that took place in the world, and that examples help us to understand what a democracy should be or what principles should be followed by the democracy. And we learned in this chapter about what a good democracy is and what a democracy is. Democracy gives us a condition, एक situation देता है, उस situation के ऊपर अपने आप को कैसे काम करा के उसको क्या बनाना है? Good बनाना है. Is that clear? So this much for today, and I'll be coming again with next multiple choice question. Till then, stay safe, stay healthy.